तो फर्स्ट लिखो सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन में टू टाइप्स के पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ और दूसरा क्रॉस। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन। अंडरलाइन करो और इसको लिखो। when the pollen grains when the pollen grains from the anther of a flower from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower, to the stigma of the same flower, or another flower on the same plant, or another flower on the same plant, comma, it is called self-pollination, comma, it is called self-pollination. सेकंड लिखो एक लाइन छोड़ के, अब सेकंड क्रॉस पोलिनेशन। अंडरलाइन करना, उसके सामने से लिखना शुरू करो, क्रॉस पोलिनेशन। सर सर बोलो। और के बाद रिपीट कर दो। रिपीट करना और के बाद, और अनदर फ्लावर, और अनदर फ्लावर on the same plant, or another flower on the same plant, comma, it is called self pollination, it is called self pollination. सेकंड लिखो क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। उसमें लिखो when the pollen grains, when the pollen grains from the anther of a flower, from the anther of a flower on one plant, on one plant, on one plant, are transferred to the stigma, to the stigma of a flower, of a flower on another similar plant, on another similar plant, comma, it is called cross pollination, it is called cross pollination। रिपीट कर रहा हूं मैं। when the pollen grains, when the pollen grains from the anther of a flower, from the anther of a flower on one plant, on one plant, are transferred to the stigma, are transferred to the stigma of a flower, of a flower on another similar plant, on another similar plant, comma, it is called cross pollination। क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट लिखना, और उस पे हाउ insects help in cross pollination, how insects help in cross pollination, क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखो। when an insect, when an insect sits on the flower, sits, sits, sits on the flower of a plant, of a plant, for for sucking nectar, for sucking nectar, nectar, then the pollen grains, then the pollen grains from the anther, from the anther of this flower, from the anther of this flower, stick, stick to its body, stick to its body. Full stop.
आगे लिखो when this insect now sits on another flower on another flower of another similar plant of another similar plant, then the pollen grains then the pollen grains sticking sticking to its body are transferred to the stigma are transferred to the stigma of this second flower to the stigma of this second flower. Full stop. आगे लिखो in this way the insect transfers the insect transfers the pollen grains from the anther of flowers from the anther of flower in in one plant to the stigma of flowers to the stigma of flowers in another plant and causes cross pollination and causes cross pollination. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखना है इसी में नेक्स्ट लाइन से ठीक है द ब्लोइंग सर विंड रिपीट कर दो एक बार. अभी करूंगा आगे लिखो अभी द ब्लोइंग विंड also the blowing wind also carries carries pollen grains from one flower to another flower from one flower to another flower and helps in cross pollination तो इसमें पूछ रहे हैं हाउ इंसेक्ट हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन हमने क्या लिखा है व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द फ्लावर ऑफ अ प्लांट ठीक है फॉर सकिंग नेक्टर जब कोई इंसेक्ट बैठता है किसी फ्लावर पे ठीक है किस लिए फॉर सकिंग नेक्टर देन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर अब एंथर में क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स ठीक है तो वो क्या होंगे देन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ दिस फ्लावर स्टिक टू इट्स बॉडी वो उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे ठीक है वो एक फ्लावर पे बैठा और फ्लावर पे क्या है एंथर है और एंथर में क्या है पोलन ग्रेन्स तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे इधर उधर चिपक जाएंगे when this insect now sits on another flower of another similar plant अब ये जो इंसेक्ट है अगर किसी और फ्लावर पे बैठता है ठीक है जो कि मतलब यहां से उड़ा वो एक प्लांट के फ्लावर पे बैठा था वो सिमिलर दूसरे प्लांट पे चला गया जो सेम काइंड का है उस पे बैठ के जाके क्यों बोल रहे हैं हम अनदर सिमिलर प्लांट उसी प्लांट के किसी फ्लावर पे क्यों नहीं बोल रहे क्योंकि बात की गई है क्रॉस पोलिनेशन की हाउ इंसेक्ट्स हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे कि इंसेक्ट जो है वो उसी प्लांट पे नहीं बैठेगा हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर है वो पहले फर्स्ट वाले फ्लावर पे बैठा उसके जस्ट बगल में जो फ्लावर था उस पे बैठ गया तो ये क्या है ये सेल्फ पोलिनेशन है हम बात कर रहे हैं तो ये जो इंसेक्ट है ये सेल्फ पोलिनेशन भी करा सकता है ऐसे थोड़ी है ठीक है ये सेल्फ पोलिनेशन नहीं कराएगा लेकिन क्वेश्चन में पूछा है क्रॉस पोलिनेशन में कैसे हेल्प करता है तो क्रॉस पोलिनेशन पूछा है तो हम क्रॉस पोलिनेशन का ही लिखेंगे तो हमने क्या कहा व्हेन दिस इंसेक्ट सिट ऑन अनदर फ्लावर ठीक है ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट पे बैठता है जो कि सिमिलर काइंड का ही है देन द पोलन ग्रेन्स स्टिकिंग टू इट्स बॉडी आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा तो जो पोलन ग्रेन्स है जो इसकी बॉडी पे स्टिक है क्योंकि अभी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठा है ठीक है दूसरे प्लांट पे तो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे स्टिग्मा पे क्लियर है
आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ दिस सेकंड फ्लावर। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, तो जो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे स्टिक हो रखे हैं वो वहां पे जाके स्टिक हो जाएंगे स्टिग्मा में। इन दिस वे द इंसेक्ट ट्रांसफर्स द पोलन ग्रेन्स। इस तरीके से जो इंसेक्ट है वो ट्रांसफर कर रहा होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर इन वन प्लांट, ठीक है, एक प्लांट का जो हम एंथर की बात कर रहे हैं वहां से, टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इन अनदर प्लांट एंड कॉजेज क्रॉस पोलिनेशन। तो इस तरीके से ये इंसेक्ट हेल्प कराते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। आगे हमने क्या लिखा, द ब्लोइंग विंड ऑल्सो कैरीज पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। इसी तरीके से जब हवा चल रही होती है तो वो भी हेल्प कर रही होती है क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है। कई बार तुमने सुना होगा कि मोस्टली तुमने ये देखा है कि जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, है ना, तो वहां पे ये इंसेक्ट बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, बटरफ्लाईज आ रही हैं, ठीक है, वो अपने काम के लिए आ रही हैं, नेक्टर के लिए। सपोज करो कि हम ऐसी जगह पे एक नर्सरी खोलना चाह रहे हैं जहाँ पे क्या है, कोई इंसेक्ट ही नहीं है, ठीक है। हमने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे लगाते हैं प्लांट फ्लावर वाले, और जितने भी इंसेक्ट हैं उसके लिए हमने स्प्रे वगैरह करवा दिया, वो सब मर गए। तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारे जो प्लांट्स हैं वो इजिली सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जरूरत है कि वहां पे उनका पॉलिनेशन भी हो, तभी तो आगे जाके दूसरा प्लांट बनेगा, उसके लिए सीड तैयार होगी, जो सीड है वो इसी से बनेगा। क्लियर है? ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, जो गैमीट है, जो पोलन ग्रेन से कहाँ पे जाएगा, फीमेल गैमीट में जाके फ्यूज होगा। जब ये फ्यूज हो जाता है तब जाके सीड बनता है, और हमें पता है सीड क्या है, सीड कैरी कर रहा होता है अपने अंदर एक न्यू प्लांट को। उस सीड को हम दबाते हैं, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में, तब जाके वहां से प्लांट निकलता है, वो सीड जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। जर्मिनेशन क्या होता है, जब उस सीड से, ठीक है, एक प्लांट निकलना शुरू हो जाए तो उसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। उसके बाद वो सॉइल से ऊपर आ जाता है और एक नया प्लांट हमें मिल जाता है। तो हमारी लाइफ में, ठीक है, हमें प्लांट्स चाहिए, देखो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स होने चाहिए नेचर में, तो उसके लिए जरूरी है कि ये इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट हो, क्योंकि हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन में। तो ये समझ आया? इसी तरीके से ब्लोइंग विंड भी हेल्प कर रही होती है पोलिनेशन में। किसी का डाउट है इतने में तो जल्दी से पूछो। तो देखो, पोलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन, यानी कि मिल जाना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक सेल बना रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे होते हैं फर्टिलाइजेशन अपने आप में, क्योंकि ये दो सेल है, ठीक है, जो मेल गैमीट है वो भी एक सेल है और जो फीमेल गैमीट है वो भी एक सेल, ठीक है। जैसे हमारी और बॉडी के सेल होते हैं, ये भी दो सेल है लेकिन थोड़े अलग हैं, स्पेशलाइज्ड सेल है। तो जब ये दोनों सेल फ्यूज हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को हम, फर्टिलाइजेशन। और उस सेल को जो फ्यूज हो चुका है उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट, ठीक है, या फिर क्या भी बोला जाता है इसको, जाइगोट, ठीक है। जब वो फ्यूज हो जाता है, यानी फर्टिलाइज एग को हम जाइगोट बोलते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग वो होगा जिस एग पे, ठीक है, मेल गैमीट आके फ्यूज नहीं हुआ, तो वहां पे हम उसको नहीं बोलेंगे कि फर्टिलाइज्ड एग है या फिर उसको जाइगोट, वो सिंपल एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं उसको। तो अभी हमने देखा पोलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से, एंथर ऑफ अ स्टेमन से ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे, ठीक है। स्टिग्मा किसका पार्ट है, कार्पिल का। इसी प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन के बाद स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, फट जाता है, और क्या करता है ये, ठीक है, एक ट्यूब बनाना शुरू कर देता है और एंटर कर जाता है स्टिग्मा से, किसमें, स्टिग्मा से स्टाइल में। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। कार्पेल में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो पोलन ट्यूब है इसको एंटर कर जाता है स्टाइल, स्टिग्मा टू स्टाइल, ठीक है। और इस पोलन ग्रेन में अभी हमने बात करी, बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, किसमें, एंथर में से। एंथर में, उस एंथर से कोई एक पोलन ग्रेन आ गया किसी भी तरीके से,
तो जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा और एक ट्यूब एंटर कर जाएगा, एक ट्यूब बनाना शुरू करेगा स्टिग्मा में, और वो फिर उसके बाद एंटर हो जाएगा स्टाइल में। ठीक है, तो ये जो मेल गैमीट है ये पुश करता रहता है और धीरे धीरे इस ट्यूब के थ्रू नीचे आता रहता है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन से मेल गैमीट धीरे धीरे मूव करने लगता है डाउनवर्ड्स। ठीक है, कहाँ जाना है इसको? इसको जाना होता है इस सेल पे। ठीक है, तुम ध्यान देना, ये सेल देखो फीमेल में बड़ा होता है और मेल में ये सेल है। ये सेल नहीं है, ये तो न्यूक्लियस बना रखा है बस हमने इस सेल का। ठीक है, चाहो तो बना दो, ना चाहो तो इसको हटा देना। तो ये क्या है? ये तो न्यूक्लियस है सर। ठीक है, तो ये जो एग है उसके अंदर आ चुका है, यानी कि फ्यूज कर चुका है मेल गैमेट, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो ये पोलन ट्यूब है धीरे धीरे डाउनवर्ड्स होती रहेगी। ठीक है, स्टिग्मा टू स्टाइल एंड देन इनटू ओवरी। ठीक है, ओवरी में ओव्यूल्स हैं, हमें पता है ये पूरा ओवरी है, और इस ओवरी में हमने एक ओव्यूल दिखा रखा है, ऐसे बहुत सारे ओव्यूल होंगे। ठीक है, और इसको हमने लार्ज करा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस ओवरी में तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, तो हमने एक दिखाया हुआ है और उसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब है जब ये ओवरी में किसी ओव्यूल के पास आ जाएगी तो वहां पे ये इसकी जो टिप है, एंड है, ठीक है, पोलन ट्यूब का, वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब वो बर्स्ट होगा यानी कि इसमें जो पोलन ट्यूब है ये एंटर कर जाती है किसमें? ओव्यूल में। ठीक है, ये क्या है? ये ओव्यूल है। ठीक है, इसी को तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल में क्या है? एग है। तो ये जो पोलन ट्यूब है इसका जो एंड है वो बर्स्ट रह जाएगा, और इसके साथ साथ धीरे धीरे कौन आ रहा था यहाँ पे? मेल गैमीट। मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर चुका? अब इस एग के साथ। इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जल्दी से पूछो इसमें अगर कुछ पूछना है तो। नहीं पूछना है तो लिखो इसमें, when a pollen grain when a pollen grain falls on the stigma of the carpel. When a pollen grain falls on the stigma of the carpel, comma, it bursts open, it bursts open and grows a pollen tube downward. It bursts open and grows a pollen tube downwards. Through this style, through this style, towards the female gamete in the ovary. Repeat कर रहा हूं मैं. It bursts open, bursts, bursts open and grows a pollen tube downwards, and grows a pollen tube downwards through this style, through this style towards the female gamete in the ovary. Through this style towards the female gamete in the ovary. Full stop. A male gamete moves down the pollen tube. A male gamete moves down the pollen tube. Full stop. The pollen tube enters the ovule in the ovary. The pollen tube enters the ovule in the ovary. Full stop. Full stop के बाद आगे लिखो. The tip of pollen tube bursts open. The tip of pollen tube bursts open and male gamete comes out of pollen tube. And male gamete comes out of pollen tube. Full stop. In ovary, comma, the male gamete of pollen, the male gamete of pollen combines with the nucleus of female gamete, with the nucleus of female gamete present
present in ovule to form a fertilized egg to form a fertilized egg called zygote. To form a fertilized egg called zygote.